Hello everyone. So we are going to talk about my May wrap up because my sister मुझे बार बार बोल रही है कि अप्रैल के आगे का बनाएगी भी कि नहीं बनाएगी. I know stay late because अभी हम जुलाई में हैं और मैं मई का wrap up बना रही हूँ. But why not? मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ. So this is my May month wrap and it was too busy in my office. खून चूस रहे हैं, टाइम नहीं देते वो लोग मुझे बुक पढ़ने का. So yeah. And so first book I finished in this month was I started with Deep End by Ali Hazelwood. Why? Why not? So I started reading this book because, as you know, it's about academia and all that stuff. So this is about a swimmer and a diver. The girl is a diver and the boy is swimmer. And what I like about the story is that it is about an emotionally unstable girl, and when she's letting someone in her life after so many heartache and all, and that guy is so protective and softy, that Pookie. so yes, so if you're into that kind of drama, if you're into Ali Hazelwood, yeah, you can go for this book. This book was good and the cover was also good, as you can see. Yes, so next book was Reckless by Elsie Silver. तो 5 बुक का सीरीज था, मैंने 3 बुक लास्ट मंथ में खत्म की थी, and this month it was Reckless by Elsie Silver. So this is the story about Bo. This is the story about Theo Silva. Yes, Theo Silva. So and the girl's gonna be a single mother. वो उसका भी divorce हुआ है and she's here in the small town and they have some tension and he's too much into her. So if you are into that kind of stories where you want cowboy aesthetics and small town, so yeah, you can go for this book. This book was good, sweet family drama. Next book was Hopeless series की जो last book है, Hopeless. So Hopeless was the story about Bo Eaton, and this is the story about the age gap, because the guy is 35 years old and the girl is 22 years old. Yes, so age gap is too huge, and this is the story that girl is alone and she's so strong, independent, और वो उसको हेल्प करना चाहता है, and वो एक रियल स्लो बर्न होता है वो इसमें है. ही इज अ मिलिट्री पर्सनल, तो उसके एस्थेटिक्स भी वैसे दिखाए हैं उस बुक में. सो मैंने एक बुक पढ़ी क्योंकि सीरीज का लास्ट पार्ट था एंड आई वांटेड टू फिनिश द सीरीज, सो आई फिनिश्ड इट एंड दिस बुक वाज गुड. यू कैन गो फॉर इट. इस बुक की सबसे अच्छी सीरीज की सबसे अच्छी बुक नहीं थी, बट या मे बी सेकेंड और थर्ड. सो नेक्स्ट बुक वाज किंग ऑफ एनवी बाय एना हुआंग. व्हाई? सो बिकॉज इंस्टाग्राम में बहुत चल रहा था, मुझे बार बार फीड में भी आ रहा था. दूसरी चीज, मैंने बुक ऑलरेडी 4 बुक पढ़ रखी थी, तो मुझे लगा कि पढ़ लेते हैं. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट बुक मार्कविच, माफिया, morally grey man we all like, and Ayana, she's a supermodel. And so it is the story about वो कैसे उस डार्क वर्ल्ड में एंटर करती है एंड कैसे इट्स नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट एंड इट्स ऑलवेज द ग्रे. एंड वो बिलीनियर है, वो माफिया है एंड स्टिल शी इज सो सॉफ्ट फॉर हर. तो इट इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी. मतलब स्टोरी कुछ नहीं था उसमें, मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट एस्थेटिक्स अच्छे हैं. Ayana is so beautiful. So yes, you can read it, but I'll not recommend that book. Yes. So next book was The Hating Game by Sally Thorne. This book was sweet. This book was classic enemies to lover. So it is the story about Lucy, the girl, and Charlie, the boy, and they both are enemies अपने ऑफिस स्पेस पे. एंड दिस इज द क्लासिक एनिमीज टू लवर एंड ऑफिस रोमांस. तो इट्स लाइक वो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और हमेशा उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पार्क रहता है, एंड हाउ दे आर कमिंग टुगेदर की कुछ तो है स्पार्क जिसको वो लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो इट इज अबाउट दैट एंड इट्स सो क्यूट स्टोरी. आई जस्ट लाइक इट लॉट. सो यस, यू कैन गो इट, गिव इट अ ट्राई. एंड नेक्स्ट बुक वॉज बुक लवर्स बाय एमिली हेनरी. मैं इस बुक को बहुत दिनों से अपने टीबीआर में बस रख रही थी, मैं पढ़ने नहीं जा रही थी, क्योंकि जब भी कोई बुक बहुत हाइप हो जाती है तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, तो मैं नहीं पढ़ रही होती हूँ. पर मैं गलत करती हूँ एक्चुअली. कोई भी बुक जब हाइप होती है ना तो वो एक्चुअली में अच्छी होती है. तो ये बुक अच्छी थी. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल, शी इज अ एजेंट, लाइक जो बुक्स लिखते हैं उनकी एजेंट है वो, एंड द गाय हु इज एडिटर. सो इसमें ऐसा होता है कि वो लड़की एजेंट है, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज बहुत छोटे, वो और उसकी बहन बहुत छोटे थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी एंड दे आर अलोन. एंड उसमें जो उन लोग का सिस्टर डायनेमिक्स है वो बहुत अच्छा, बिकॉज आई लव माई सिस्टर अलॉट.
सो मुझे वो जो सिस्टर डायनेमिक्स है वो दिखाया है, तो वो बहुत अच्छा लगा उसमें. एंड ग्रीफ जो इमोशन है, बिकॉज वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे होते हैं, या आप किसी उस चीज़ को उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड द गाय, वो मतलब वो कैसे उनकी लाइफ में आता है, वो लोग स्मॉल टाउन में जाते हैं एंड कैसे वो चीज़ उन लोग एक लिस्ट बनाती है उसकी, मतलब इट्स ऑल वेरी गुड स्टोरी एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई इवन दो इट्स हाइप्ड, बट डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि if you want sister dynamics or other book banter, because we all love books, so definitely you should go for it. And the last book was, the seventh book was in this month was Credence by Penelope Douglas. अब क्यों पढ़ा मैंने? Yes, so this is the story about a teenage girl, and she lost her parents, and she's gonna live with her uncle and two cousins in a mountain, in small cabin for like उसमें जब winter आता है तो वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है, तो she's gonna live there, and it is morally grey, or like family dynamics are so bad, and or messed up characters. So if you're into it, dark, it's not dark romance, it was I don't know, it was not romance at all. So yes, characters, मतलब it's not like I don't like the book, but मतलब मुझे बुक वॉज गुड, बट मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इसमें कुछ पसंद है. जैसे कि ऐसा होता है ना कि हर बुक में एक एक फेवरेट कैरेक्टर होता है हमारा, या हमें फीमेल लीड पसंद होता है, मेल लीड पसंद होता है, या कोई फ्रेंड पसंद होता है. इस बुक में मुझे कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं है. आई डोंट नो कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, या फिर सिर्फ उसमें सीन्स थे जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, या वट एवर, बट पढ़ लिया मैंने, ठीक है. इवन दो आई हैव वन मोर बुक बाय द सेम राइटर, करप्ट. इट्स नॉट लाइक कि ये बुक पढ़ने के बाद मैं वो बुक नहीं पढ़ूंगी, आई विल रीड इट, बट yeah, so this was it for this month. I finished 7 books in this month, and I hope मैं अगले महीने का भी रिकॉर्डिंग कर लूँ. So yeah, thank you so much for watching. Bye bye.